Hello everyone, I welcome you all in today's class. Okay, so today also we will continue the same exercise, that is your 5.2. As we have finished till 7th question, okay, so I'll take question 8, 9, 10 and if possible 11th also. Okay, let's see how much time we have. So first question, that means 8th. Okay, first question of today's class and question 8. It is an AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find 29th term. Okay. First of all, we will be writing given. Okay. This is your question here. So given is that there is an AP where total terms are 50, okay, and the last term given is 106, and then one more thing, the third term, that means A3 is given 12 first, and we need to find out A29 over here. Okay, this is all about question. Total 50 terms are there. Last term is 106, third term is 12. Then we need to find out A29. अब आप बोल रहे हो कि हमको हमेशा ना ऐसे दो कंडीशन गिवन होना चाहिए ना, तब तो हम इनको सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो हमको मिल गई जिससे हम इक्वेशन बना पाएंगे A3, दैट मीन्स A प्लस 2D इक्वल्स टू 12. ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई. अब सेकेंड इक्वेशन आपको जो निकालनी है वो यहाँ से टोटल टर्म्स आर 50 एंड लास्ट टर्म इज 106. तो यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है? यहाँ से आपको समझ आ रहा है कि A50 is equals to 106. Understood? So we will have two conditions now. So A plus 50 if we talk, so 49D equals to 106, and here A plus twice of D equals to 12. फाइन, समझ आए क्या किया हमने? जहां हमको पता है कि टोटल 50 टर्म्स है और लास्ट टर्म आपको 106 है, तो आप इसको लिख लें डायरेक्ट A50 equals to 106 and A3 equals to 12. And now by both the conditions, okay, by both the conditions we will write the equation. Now we are going to solve it. A cancel, over here will be 47D and over here will be 94. Cancel it twice. So we will have D equals to 2. After this, you can put the value in second equation. देखिए जो आपकी second equation है, इसमें हम D की वैल्यू पुट अप कर देते हैं. तो A plus, okay, so A equals to C. Understood? What we have done? D equals to, we got 2. And now put the value of D in equation second, है ना? इसमें पुट किया हमने इक्वेशन सेकंड में. इक्वेशन सेकंड में आप जैसे D की वैल्यू पुट अप करेंगे तो आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी 1. अब आपके पास A भी है, D भी है. ओके, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? A29, which will be the answer. So A29 can be written as A plus 28B. Please put up the values. Okay, so this will be your answer. This is question number 8. Okay, you can write that 29th term of this AP is 64. ठीक है, लास्ट लाइन आप इसको लिख सकते हैं. 29th term of this given AP is 64, which is your answer. Fine, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सिर्फ आपको ये दोनों लाइन को मतलब समझना है. यहाँ पे लास्ट टर्म को मतलब L जो है आप बिल्कुल ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि आपको ये टर्म दिया हुआ है ना, फिक्स टर्म आपको दिया हुआ है कि 50 है, तो 50 ही आपको लिखना है, A50 लिखना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9. क्वेश्चन इज इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8, which term of an AP is 0?
It is third and ninth term. So given we will write A3 and A9 equals to 4n-8. ओके, और हमको मालूम करना है कि जीरो जो है वो कौन सी टर्म होगा। ठीक है, जीरो तो है, कोई टर्म है जीरो, लेकिन यहाँ पर n क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो ये हमको दो कंडीशंस मिल गई। ठीक है, तो पहले हम दोनों कंडीशन से इक्वेशन बना लेते हैं। a प्लस 2b इक्वल्स टू 4, a प्लस 8b इक्वल्स टू -8। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। इट विल बी 6 -6b इक्वल्स टू 12 and b equals to -2. Fine, it will be cancelled twice. And if you put the value in equation first, consider this equation first, consider this equation second. So if you put the value of b equals to -2 in equation first, so we'll have a plus 2 into -2 equals to 4. Okay, so a equals to we'll have 8. फाइन, क्या किया, A3 गिवन था 4, A9 हम गिवन था -8. By both the conditions we will write the equation over here. After writing equation, please solve the equation. Is on subtracting we can solve. After subtracting the equations, we will get the value of b equals to -2. Put up the value of b equals to -2 in equation first, and you will get the value of a, that is 8. Now we need to check that 0. देयर इज एनी टर्म। ठीक है, कोई एक टर्म है उसको हम एन टर्म मान लेते हैं ना, एन टर्म मान लेते हैं जो कि 0 है। तो हमें ए एन मिल गया 0, ए हमारे पास 8 है और डी हमारे पास -2 है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। तो 0 इक्वल्स टू वी विल राइट 8 प्लस एन वी डोंट नो एंड डी इज -2। समझ आ रहा है क्या किया, ए हमारे पास है, डी हमारे पास है और ए एन भी हमको दिया है 0। सिर्फ हमको ये n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि ये कौन सी वैल्यू है। नाउ यू ट्रांसपोज यस -8 इक्वल्स टू n -1 -2। फर्दर व्हेन यू डिवाइड दिस इट विल बी कैंसिल 4 टाइम्स। ओके, 4 इक्वल्स टू n -1 and n इक्वल्स टू 5. दैट मीन्स 0 will be the fifth term. You can write A5 equals to 0. Got it? So this will be the answer. You can write that if third term is 4 and ninth term is -8, then the fifth term of this given AP will be 0. Okay, understood? Next is equation 10. Question 10 is the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17th term exceeds from 10th term by 7. ओके, एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देते हैं। सपोज आई सेड दैट आई एम 4 years older than my brother. In case this is the condition that I am 4 years older than my brother. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, if you add 4 into my brother's age, it will become equal to my age. Else you can do, if you subtract my brother's age from my age, it will be equals to 4. Okay, so here subtraction we can do. Okay, whenever this comparison is being done, है ना, जब भी ये comparison दिया जाता है कौन किससे ज्यादा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, इस कंडीशन में आपको सिर्फ subtract करना है। ठीक है, ये आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि जब भी ये मोर देन लेस देन वाली कंडीशन गिवन होती है तब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट वाली कंडीशन यूज करना है। ठीक है, तो अभी बोल रहा है कि जो आपका A17 है, ठीक है, A17
A10 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो अगर आप ये लिख देते हैं तो सीधी सी बात है कि A17 A10 से 7 ज्यादा है, हो गया, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करोगे, आप लिखोगे A17 इक्वल्स टू 7 प्लस A10, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको चेंज तो इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है that whenever there is question of more than and less than time, okay, so you use to subtract, ठीक है। आपको क्या करना है, वहां पर subtract करना है। Here is now, so you'll write A17, that means A plus 16D minus A10 can be written as A plus 9D equals to 7. Further you can solve A plus 16D minus A minus 9D equals to 7. Okay, A will be cancelled. 16D minus 9D equals to 7D equals to 7. And please, you can cancel 7 by 1 times. So D equals to 1. Means common difference आपको कितना आ गया, 1. समझ आया, क्वेश्चन समझ आया। सिर्फ आपको ये कंडीशन याद रखनी, whenever the condition of more than and less than is given and it is clear for you that this term is more, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि 17 term is exceed, sorry, so here 17 minus A10 equals to 7 and you please further solve this condition, okay. Next is your question number 11. Question 11, okay. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? I'm writing the whole question, okay. Only. Which term of the AP, and AP is given 3 or 15, I think. 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54th term. This is your question, okay. Try to understand the question. क्या बोल रहा है, विच टर्म, ऐसी कौन सी टर्म है, ठीक है, मीन्स एन, ठीक, कोई nth टर्म होगी, ठीक है, उसको हमने एन मान लिया। तो कोई भी nth टर्म है जो कि इस एपी में, एपी क्या है आपकी, एपी गिवन इज 3, 15, 27, 39 and till we don't know, will be 132 more than its 54th term, मतलब यहाँ पर कोई a 54th टर्म होगी, उसमें वो कितनी ज्यादा है, 132 ज्यादा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस अगेन। क्या बोल रहा है कि ये जो एपी है, ठीक है, इस एपी में वो कौन सी टर्म है जो इस एपी के 54th टर्म से 132 जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि A54 क्या है। आपको अगर A54 मिल जाता है तब आप मालूम कर पाओगे कि A54 में 132 ऐड करने के बाद कितना आ रहा है और वो कौन सी टर्म है, ठीक है। मतलब यहाँ पर सेम प्रोसेस आपको ट्वाइस रिपीट करना, ठीक है। यू हैव टू रिपीट द सेम थिंग ट्वाइस, देन ओनली यू विल गेट द आंसर, ओके। बट बिफोर दैट यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, this is the given AP and in this AP we need to check that if we have any 54 term of the same AP, then after adding 132 to this 54th term, the further value or the further term that we will get, so which term is that? Understood? Okay, so should we follow one by one step? The first step is to find out A54, and for that we need to write A equals to 3, common difference. What can be the common difference over here? 15 minus 3, 12, okay. And if we are finding A54, for this condition n equals to 54 we will have,
Here, three things we got: A, D, and N. So A54 equals to A plus 53D. We can write A is 3, 53 into difference is 12. So 3 plus, okay, 12 will be 36. Carry 3. Okay, 12 5 the 60 plus 3, 63, and it will be so 639. Okay, 639 is its 54th term, but still this is not the answer. Okay, अभी भी ये हमारा आंसर नहीं, हमको चाहिए कि 639 में 132 आप ऐड कर लो. ठीक है, तो आप जरा ऐड करो तो कितना होगा आपका? ये होगा आपका 7 6 okay, your answer will be 771. okay, if you add 639 with 132 तो आपके पास आता है 771 and this become your an. ठीक है, अब आपका an क्या हो गया? 771. ठीक है, a आपके पास हो जाएगा 3 and common difference will be same 12. और अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? n. समझ आ रहा है? ठीक है, जैसे आपने A52 निकाला, अब उसमें आपको क्या ऐड करना है? 132 ऐड करना है. क्यों ऐड करना है? क्योंकि हमको नहीं मालूम करना है कि A54 क्या है. हमको मालूम करना है कि A54 में 132 ऐड करने के बाद कौन सी टर्म आ रही है. ठीक है, और उसकी प्लेस क्या है. तो हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास आया 771. और 771 जैसे हमारे पास आया तो अब हमको फाइंड आउट करना है कि आपकी जो 771 जो वैल्यू है, ठीक है, ये कौन सी टर्म. ओके, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ए है, डी है, ए एन है, सिर्फ एन हमें फाइंड आउट करना है. So use the same formula once again. an equals to a plus n minus 1 into d. Put the value 771 equals to 3 plus n we don't have. d is 12. If you subtract this, it will be 768 equals to n minus 1 into 12. Further, if you just divide this, so 768 divide by 12. ओके, डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू n माइनस 1. ठीक है, अभी 12 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा? ओके, 64. तो 64 प्लस 1 इक्वल्स टू n. दैट मीन्स वी कैन राइट n इक्वल्स टू 65. ओके, 65th term will be the term which is 132 more than its 54th term. क्लियर हुआ? एक बार फिर से देखो, एपी था, एपी में आपको बताना है कि 152 अगर हम ऐड करें 54 टर्म है तो वो कौन सी टर्म होगी. ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो 54 टर्म निकाला, ये निकाला. ठीक है, 54 टर्म निकालने के बाद हमने उसमें 132 ऐड किया तो हमारे पास आया 771. अब जैसे हमारे पास ये वैल्यू आ गया तो इसको हमें फाइंड आउट करना है कि किस प्लेस पर है. एन प्लेस फाइंड आउट करना है. तो एन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ए एन है, ए है, डी है. We'll use the same formula again, and after using this formula, we'll find that means after transposing our further solution, you can find that n is its 65th term. Okay, so only see concepts are essential for this. One by one question solve करना इतना कोई important नहीं है, सिर्फ important है कि आप इसमें concepts कितने अच्छे से समझ रहे हैं. ठीक है, so now I am giving you homework. Please note it down, your homework. Okay. 12 question I need to explain to you. ठीक है, हालांकि 12th आप कर सकते हैं. 13 and 14. ठीक है, 13 and 14 questions are in homework for you, but I am just explaining these two questions in a very short. ठीक है, आपको एकदम शॉर्ट में समझा रहे हैं कि है क्या. But you have to solve these questions, and even you can solve question 12 also. Fine, you can check.
once, and if you are facing any problem in 12, then you can just inform me, I will solve. But 13 and 14 are completely for you. Okay. Okay, try to understand question 13. How many 3-digit numbers are divisible by 7? Okay, 3-digit numbers. 3-digit numbers are beginning from 100 and ending at 999. Are you getting? ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन हिंट है, इसको समझ लीजिए. ठीक है, हिंट है ये आपके लिए. तो ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 3-digit numbers आर डिविजिबल बाय 7. ठीक है, कितने 3-digit नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल है. तो हमें पहले तो ये मालूम कर लेंगे 3-digit नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं. तो 3-digit नंबर्स आर फ्रॉम 100 to 999. नाउ फॉर यू टू चेक. ठीक है, अब इसमें क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या होगा, 7 होगा. ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, एक तो a चाहिए. ठीक है, और एक आपको चाहिए an. ठीक है, तो आप फाइंड आउट कर लो कि फर्स्ट ऐसी कौन सी टर्म है जो 7 से डिविजिबल है और 3-digit नंबर भी है. सीधी सी बात है, 100 से ज्यादा होगी. और लास्ट वो कौन सी टर्म है, क्योंकि 999 है, क्या ये डिविजिबल है? अगर नहीं तो इससे पहले कोई ऐसी टर्म होगी जो 7 से डिविजिबल होगी. ठीक है, तो वो नंबर आप देख लो, a भी हो गया, d भी हो गया, an भी हो गया. आपको सिर्फ क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, n. समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? ठीक है, जैसे अगर हम बोलते हैं कि 2-digit नंबर बताइए फ्रॉम 10 to 20 डिविजिबल बाय 2, तो पहला तो 10 ही है और लास्ट आपका 20 है और डिफरेंस आपके पास 2 है. ठीक है, तो a है, d है, an है, सब है आपके पास. आप निकाल लोगे n कितना है. वैसे ही है, आप a निकालो. सबसे पहले a कैसे निकालोगे भाई, 100 को डिवाइड करके देखो 7 से. अगर ये डिवाइड हो रहा है तो नहीं, इसके बाद नेक्स्ट कोई टर्म होगा. ठीक है, तो पहला वो टर्म निकाल लो 3-digit जो डिविजिबल है. ऐसे ही आप लास्ट टर्म निकाल लो जो 7 से डिविजिबल है. दोनों आपके पास होगा, d ऑलरेडी यू हैव एंड यू नीड टू फाइंड आउट n. दैट्स इट. देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 14. हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4. ठीक है, अब मल्टीपल ऑफ 4 बोले या डिविजिबल बाय 4 बोले, बात वही है. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 lie between 10 to 250. So same thing, this is because these both questions are of same category. ठीक है, क्वेश्चन है फ्रॉम 10 to 250. ठीक है, आपको वो डिजिट्स बताने, सॉरी वो नंबर्स बताने हैं जो 10 और 250 के बीच में आते हैं और 4 से डिविजिबल है या 4 के मल्टीपल है. बोथ आर द सेम थिंग. तो आप स्टार्ट करो 12 से. ठीक है, लास्ट आपका कोई एक नंबर होगा, डिफरेंस आपके पास 4 होगा. a हो गया, an हो गया, d हो गया, एंड यू नीड टू फाइंड आउट n ओनली. सो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. दीज क्वेश्चंस आर इवन, इनका एक्सप्लेनेशन भी जरूरी नहीं था, बट ओके आई हैव गिवन. सो यू प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर. होमवर्क प्लीज नोट इट डाउन. होमवर्क इज क्वेश्चन 12. सॉल्व क्वेश्चन 12, 13 and 14. Okay. So it's enough for today. Thank you.